हाय वेरी गुड आफ्टरनून व्यूअर्स. सो टुडे आप पहुंचे हैं सर्च माय प्रॉपर्टी. सौरभ जैन जी बहुत करीबी दोस्त हैं और 2005 में उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी बैंगलोर में और उनको क्या खींच लाया दिल्ली गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट, तो जानते हैं. तो हेलो सौरभ, वेलकम टू टेरागी पॉडकास्ट. Thank you so much. How are you doing? वेरी गुड. थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी फॉर दिस. So I think let's start this conversation. हम बैक स्टेज बात कर रहे थे. हाँ जी. You started in 2005, 2010. जी. You were number 2 in Bangalore. जी. थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताओ. हाँ जी. So I did my schooling from Srinagar Holokuma. I did my MBA from Jamia Millia Islamia International Business. I did my MIT MBA International Business. From there, I got a placement in a company by the name of Maxium Flight. I was a youngest, recruited person over there. That is where I met all my friends, and that is where the journey started. But 2010 I always wanted to start something on my own. So 2010 is when I decided to leave my job and my salary bracket, and I actually started my real estate career from Bangalore. So Bangalore is when I started my company by the name of Property Mart, which is still existing. We were two partners. So in 2015 is when I decided I have to quit this, because of my family reasons. So I had to quit it, and I moved back to Delhi in 2016. So post that, 16 is when I little struggled for some time, but then thereafter I got an opportunity with one of the bigger names in the market, and I started up in a partnership for the resale vertical, which was not a very very fluent vertical or organized vertical in Gurgaon. So I started up the resale vertical. I worked with them for another almost 2020. Post-COVID is when I worked with them, and 2021 is when I started Search My Property. And since then, the Search My Property inception has been there, although the inception of Search My Property happened during the COVID times when the brainstorming was going on. सौरभ जी, थोड़ा सा ये बताओ, रियल एस्टेट एक जो करियर होता है ना, lot of parents wants कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने. How did you decide कि I want to be a real estate company, I want to be a real estate agent? See, what had happened is in 2005 से 2010 was when the Noida and Gurgaon market was shaping up very well. And there were a lot of players who were, trying to approach people like us who were on jobs, who had their network of, advisors and meeting the direct clients. एंड टॉकिंग अबाउट कि अगर आपके क्लाइंट को कोई प्रॉपर्टी की कभी जरूरत हो तो आप हमारे को बस नंबर दे देना एंड वी विल कनेक्ट. तो ऐसे 2-4-5 नंबर दिए गए, एंड रेफरेंस के नाम पे जब मेरी पहली सैलरी 2005 में 25,000 थी, तो मुझे रेफरेंस के नाम पे और वो क्लोजर होने के नाम पे मुझे 75,000 रुपये मिल गए थे उस समय. तो अगर 75,000 रुपये उस समय 25,000 के उस समय देखा जाए तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि रियल एस्टेट में पैसा है. और एक और सज्जन ने मुझसे ये बात की थी, एक सीनियर थे हमारे, उन्होंने मुझसे ये बात की थी कि देखिए, बिकता सब कुछ है. आप सेल्स में हो, आप इंश्योरेंस बेचो, आप 5,000 की बेचोगे उसमें परसेंटेज एक्स कमाओगे. आप 10 लाख का सामान बेचोगे उसमें एक्स परसेंटेज कमाओगे. अगर आप 50 लाख से करोड़ रुपए का सामान बेचोगे तो उसमें परसेंटेज एक्स कमाओगे. तो बट ऑब्वियसली जो परसेंटेज डिपेंड करती है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का प्रोपोर्शनेट है. सो कितना पैसा आप कमा पा रहे हैं, किससे कैसे कमा पा रहे हैं. बेसिकली मेरे को लगता है कि पैसे की भूख थी या पैसे की जरूरत थी या रिक्वायरमेंट थी फैमिली के अंदर. तो इसीलिए रियल एस्टेट वाज अ वेरी वेरी फ्लुएंट मार्केट जिसमें पैसा बहुत ज्यादा था. एंड यस, माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी इन एवरी वे, बिकॉज लीविंग द जॉब एंड स्टार्टिंग अप समथिंग इन बैंगलोर व्हिच इज अ न्यू टेरिटरी, नोबडी नोज, ना घर है, ना मकान है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना कोई जानता है, वहां पे शुरू करा. तो हमारे को मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था. एंड देन धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो सब चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो गई थी. 1-2 साल में सब चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी. There are very few brokers in Gurgaon who has a experience from Bangalore also. You tell us how Bangalore market is different from Gurgaon. देखिए, Bangalore market, when we started in Bangalore market 2010, that time Bangalore market was a very very virgin market. Plus, the major difference what has happened, I personally feel the major difference is number of brokers, which has changed. The quality of brokers have improved. That is good thing. The third thing that has happened is that the marketing cost, the marketing techniques has drastically changed. Let's say I'll give an example.
I think when I used to, there was a project by the name of Prestige Lakeside Habitat and Prestige Falcon City. So Falcon City में और Lakeside Habitat में दोनों में मैंने 75-60 बुकिंग्स इंडिविजुअली करी और you will be surprised कि टोटल स्पेंड हुआ था लाख रुपए, क्योंकि उस समय देखिए प्लीज अंडरस्टैंड SMS campaigns was not on a try did not block any limitation. So thereafter we also were the first ones to start on Facebook से और Google से बहुत आता था हमारे पे, then WhatsApp campaigns थे. So these were and उस समय कस्टमर के लिए भी ये नया चीज थी. Thanks to my education and my background, thanks to my parents जिन्होंने मुझे एजुकेशन प्रोवाइड करी, थोड़ा सा एक पॉलिश्ड अप्रोच था. तो क्लाइंट को वो जो रेगुलर लोकल प्रॉपर्टी डीलर वाली दुकान जिसमें एक कमरा, एक टेबल चेयर और एक ऑफिस बॉय और एक स्कूटर बाइक बाहर खड़ी होती थी, उससे थोड़ा सा एक प्रोफेशनल अप्रोच मिला. और दिल्ली, गुड़गांव और अभी में क्या है फर्क, सिर्फ ये है कि खर्चा ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा. ब्रोकरेजेस, थैंक्स टू मेनी अदर चैनल्स हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो ब्रोकरेज पे बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं. Saurabh, you had 20 years of experience into real estate. जी. SMS पहले काम करता था, there were less restrictions from government and everything. जी. आज की डेट में क्या इवॉल्व हुआ है, क्या बदला है इन लास्ट 20 years? देखिए मेरे पर हमारा ना थोड़ा सा मॉडल में आपको समझाता हूँ. सर्च माय प्रॉपर्टी में 50 लोग में से 32 लोग जो है ना वो मार्केटिंग के और 18 लोग ही सेल्स के. मेरे बराबर या मेरे से बेटर ही होंगे, मेरे से बुरे नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि कई प्रोडक्ट की जो माइक्रो लेवल डिटेल्स है उनको ज्यादा पता है, मुझे कम पता है, बिकॉज दे आर ऑन द फील्ड एवरी डे. सो जो मार्केटिंग टीम है यहाँ पे, वो मार्केटिंग में जो स्पेंड है, आप मानेंगे हमारा 7 लाख रुपए का महीने का मार्केटिंग स्पेंड है अपार्ट फ्रॉम द सैलरीज. और दूसरा AI आने के बाद और नई चीजें जैसे त्रियागी आया है, त्रियागी हैज मेड प्लेटफॉर्म वेरी इजी फॉर अस. पहले हमारे लड़के जाते थे गली इन्वेंट्री ढूंढते थे और उसके बाद क्लाइंट के आने से पहले 10 दिन पहले से शुरू करते थे. फिर वो फ्लोर निकालते थे, फिर बिल्डरों से बात करके रिक्वेस्ट करते थे चाबी भिजवा दो, विजिट करानी है, वो कहते थे अपने मालिक से बात कराओ. अब ये त्रियागी ने एक तो ये स्मूथ कर दिया. सो प्लेटफॉर्म लाइक त्रियागी is one of the platforms which has also made things easier for us. And apart from this, yes, रियल एस्टेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केटिंग का रोल ज्यादा है इस समय. सो हमारी रोज की जो मार्केटिंग का सपोर्ट हमारे को देता है वो 150 से 200 IVR कॉल्स हमारे रिसीव होते हैं रोज. तो 18 लोगों के लिए 150 से 200 IVR कॉल इज 10 लीड, 12 लीड पर पर्सन, which is a good scenario. So this is something which is a drastic improvement which has happened. What is the biggest myth a buyer has about Gurgaon market? ये तो जी मिथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ सबसे बड़ा मिथ तो सबसे पहले ये कहता है कि सबसे पहले हर एक बंदे से फोन करो, वो कहता है गुड़गांव मार्केट महंगी हो गई है. मैं ना आपको बहुत सिंपल एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं समझाना चाहता हूँ. देखिए गुड़गांव मार्केट को ना 1998 से 2000 के बीच में गुड़गांव मार्केट बसी है. 26 साल की अभी यूथ है, अभी यूथ में अभी टीन भी नहीं हुई है मेरे हिसाब से. अगर आप बाकी मार्केट्स को देखोगे, बैंगलोर देख लो, दिल्ली देख लो, नोएडा देख लो, कोई भी देख लो, मेरे ख्याल से 20-25-26 साल का गुड़गांव हुआ है. अभी 26 साल के अंदर आपको लग रहा है कि 26 साल में आपने क्या क्या चीजें देख ली. गुड़गांव में क्या क्या देख लिया आपने? कैमेलिया देख लिया आपने, साइबर सिटी देखो आपको मैं लैंडमार्क्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ. आपने वर्ल्ड मार्क जैसी चीजें देख ली, आपने होराइजन जैसी चीजें देख ली, आपने गोल्फ कोर्स रोड देख लिया रेड लाइट फ्री, आपने द्वारका एक्सप्रेसवे देख लिया, आपने अंडर पासेस देख लिए बहुत लंबे बने हुए, आपको कनेक्टिविटी टू एयरपोर्ट दिख गई, आपको कंफर्ट ऑफ लाइफ एंड लिविंग लाइफस्टाइल चेंज फ्रॉम दिल्ली एंड गुड़गांव मिल गया. तो जो आपका मिथ है ना जी कि महंगा हो गया गुड़गांव महंगा नहीं हुआ है. अभी गुड़गांव महंगा होगा. 115 सेक्टर में मैं मान के चलता हूं कि 70 सेक्टर 80 सेक्टरों में अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल है और बाकियों में रेजिडेंशियल नहीं है, क्योंकि कहीं पे कमर्शियल आ रहा है, कहीं पे ग्लोबल सिटी आ रही है, कहीं पे साइबर सिटी आ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है. तो 80 में आप मान के चलो, 80 में हर एक सेक्टर में 20 सोसाइटी है. ठीक है जी. तो 80 into 20 कितना हो गया जी? 160 1600. तो जी 1600 अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस है. तो 1000 से कितना हो गया जी? 16 लाख. मतलब आराम से 16 लाख. तो 16 लाख मकान हमारे पास है मान के चलो, अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव इन, जो मर्जी मान लो. इसके अलावा फ्लोर मान लो, बिल्डर फ्लोर मान लो, और आप जो मर्जी और चीजें ऐड कर लो. 4 लाख 5 लाख से ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता. तो हम मान के चल रहे हैं 21 लाख इन्वेंट्री में हम किसी भी टाइम पे बैठे हुए हैं.
फ्रॉम टुडे टू अनदर 5 years, जो अंडर कंस्ट्रक्शन को मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ, ठीक है जी। तो 21 लाख मेरे पास इन्वेंट्री हमेशा अवेलेबल है पूरे गुड़गांव मार्केट में, आज से लेके अगले 5 साल तक। जो अंडर कंस्ट्रक्शन मैंने गिन लिए, जो आज प्रोजेक्ट 99 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, सब मान लिए मैंने उसको। लेकिन आपको ये समझना है, साइबर सिटी 1 में कितने लोग आ रहे हैं? मेरे ख्याल से 5 से 7 लाख लोग आ रहे हैं। फिर साइबर सिटी 1 जैसी और छोटी पॉकेट्स कितनी है? होराइजन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, उद्योग विहार हो गया, फिर आपका साइबर पार्क हो गया, फिर अभी एक्सटेंशन रोड में बहुत सारी, सोना रोड हो गया, कॉर्पोरेट ग्रीन्स हो गया, आपका डिजिटल ग्रीन हो गया। अभी कौन कौन से आने हैं? ऑटोग्राफ आने हैं, आपके पास साइबर सिटी 2 आना है। अगर साइबर सिटी 1 90 एकड़ है, वो 270 एकड़ है। तो आपको ये समझना है, अगर वहां 5 लाख जनता आ रही है तो वहां 15 लाख जनता आएगी, या शायद और ज्यादा, FAR बढ़ चुका है, शायद वहां 20 लाख जनता आएगी। तो जो एग्जिस्टिंग जनता है ना, उसके लिए अभी मकान पूरे नहीं है 25 लाख। और अगर 15 लाख 20 लाख 25 लाख जनता और आ गई गुड़गांव में, जो मानेसर तक बढ़ चुका है, सोना तक बढ़ चुका है, झज्जर तक बढ़ चुका है, तो अगर ये सारी चीजें बढ़ गई तो आपको ये समझना है हमारे को 50 लाख मकान की जरूरत है, लेकिन जनता को आज रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए ये लॉजिक, डिमांड एंड सप्लाई जो है, वो हमेशा प्ले करेगा गुड़गांव में। इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई से चीजें अभी महंगी होनी है। तो ये राइट टाइम है बाय करने के लिए। अगर खरीदना है तो अभी खरीद लो, वरना बाद में फिर वो महंगा ही होता जाएगा। सौरभ जी, जो व्यूअर्स हमारा आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सर्च माय प्रॉपर्टी के माध्यम से आप उनको क्या, कौन सी एक लोकेलिटी है जो आपको लगता है अ बायर शुड इन्वेस्ट इन नेक्स्ट 2 years इन गुड़गांव मार्केट? देखिए मैं आपको ना, देखिए वैसे गुड़गांव के अंदर, देखिए हमने ना हमारी स्टडी के हिसाब से हमने 5 सेक्टर में डिवाइड कर, एक गोल्फ कोर्स रोड हो गया, एक एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन में कंसिडर करता हूँ वाटिका चौक तक। वाटिका चौक से जो CPR तक कनेक्ट होता है उसे कहते हैं हम SPR, वो एक छोटे से पोर्शन को हम SPR कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे साइबर सिटी और ये सब हमारा वाटिका चौक से। फिर हम द्वारका एक्सप्रेस में न्यू गुड़गांव और एक सोना की बेल्ट अलग है, उसको हम अलग कंसिडर करते हैं। तो देखिए, सबसे नंबर 1, अगर किसी ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा डालना है और मल्टीपल ग्रोथ लेनी है, तो मेरे हिसाब से आपको SPR पे जाना चाहिए। लेकिन जिसने रहना है या एंड यूजर के लिए जाना है और थोड़ा सा अपार्टमेंट और स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अच्छा चाहिए, तो द्वारका एक्सप्रेस पे जाना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, द्वारका एक्सप्रेस पे और गोल्फ कोर्स रोड पैरेलल है। वो भी साइबर सिटी को कनेक्ट करता है, वो भी साइबर सिटी को कनेक्ट करता है, वो इधर करता है, वो उधर करता है, वो भी एयरपोर्ट को करता है गोल्फ कोर्स रोड, वो भी गोल्फ कोर्स रोड एयरपोर्ट को करता है, वो दोनों NH8 पे टच करते हैं, दोनों NH8 पे टच करते हैं। सो यस, द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर भी आपके पास स्कोप चाहे 5 साल, चाहे 10 साल, शायद 30-35 हजार का रेट होने की एक्सपेक्टेशन आज नहीं तो आगे 100% है। ऐसी कोई मेमोरेबल डील आपके दिमाग में जहाँ पे आपको मजा आया हो डील करने में और बायर का इवोल्यूशन देखा हो? पहले बायर को जो मैं बताता था वो उसके लिए रामबाण था। आज बायर इज बिकम अ ब्रोकर, एक साला साडू जीजा। ये रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है क्योंकि ये सबको सब ज्ञान बांटते हैं। आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं, किसी भी आप गैदरिंग में बैठते हैं, तो वहां पे 3 ही चीजें डिस्कस होती है, पीपल विच इज गॉसिपिंग, प्रॉपर्टीज क्योंकि शो ऑफ है, और पॉलिटिक्स क्योंकि हॉट टॉपिक्स है हमेशा के लिए। तो प्रॉपर्टी बीइंग अ वेरी बिग टॉपिक इन दिस, तो साला साडू जीजा ये जरूर बताते हैं कि उन्होंने लिया है ये, और वो जब वो लिया होता है तो उसमें 5 चीजें नेगेटिव होती है और जो उन्होंने लिया होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन वो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं होता। सो क्या है कि लोग अपने माइंडसेट को बना के चलते हैं ये बात को। और देखिए क्या होता है, क्योंकि साला साडू जीजा अगर किसी मीटिंग में आ जाए, क्लोजर मीटिंग में, तो वो मामा बनता है। कि वो क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि देयर हैज अ वैल्यू ऐड फॉर देम टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो वो ब्रोकर बनता है साथ में। वो प्रॉब्लम क्रिएटर है, बिकॉज हम लोग देखिए वी आर डॉक्टर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट। मैंने 2700 रीसेल करी है गुड़गांव मार्केट के अंदर, 2700 ब्रोकर के साथ। तो आपको समझना पड़ेगा कितने सारी वैरायटी और पैरिटी में मैंने काम किया हुआ। और अगर गुड़गांव के रियल आपके बजट के हिसाब से, आपके कंपोनेंट्स के हिसाब से, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके ऑफिस वर्किंग, आपके बच्चे की स्कूल के हिसाब से, आपकी वाइफ की वर्किंग के हिसाब से, आपके पेरेंट्स के हॉस्पिटल के हिसाब से मैं कुछ शॉर्टलिस्ट करके दे रहा हूँ, तो मैं कुछ सोच समझ कर दे रहा हूँ। आप लोगों को मैं जो चीज समझाता हूँ क्लोजिंग डील में, तो यार देयर वाज अ डील, उसमें सर आए और सर ने, हमने बिल्डर फ्लोर बेचा था, बिल्डर फ्लोर उनको आइडेंटिफाई कराया, बहुत पसंद आया था। स्टार्टिंग 4-4.5 करोड़ की डिस्कशन शुरू हुई थी। जब मीटिंग में बैठे तो 3 करोड़ रुपए पे आ गए थे कि 3 करोड़ से ज्यादा का लेना नहीं है। बिल्डर जो था वो आई थिंक अराउंड 370-80 पे क्लोज करने को तैयार था। वो कह रहे जी मैं 3 पे क्लोज करूंगा, बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड
very much. So yeah, these are deals. I mean, आज तक वो मकान नहीं ले पाए हैं, वो भी भटक रहे हैं और चीजें महंगी होती जा रही हैं। बहुत ओपन कन्वर्सेशन में जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज दिस गवर्नमेंट strategies or government policies in last 3-4 years I have seen there's a ruling fourth floor बंद हो जाएगा, आपको NOC लेना पड़ेगा. What do you have to say? Is there a failure at the government part or it is a long-term strategy for the buyer safety? देखिए सर, क्या हुआ है कि जब भी DLF ने बनाया अपना एरिया या सेक्टर्स ने काटे, तो क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक शहर का ही होता है. आज आप तो डेरा पकड़ लो, अभी जो है 50% का FAR है और 2 मंजिल 1.5 मंजिल का FAR है. धीरे धीरे वो उसको भी 4 मंजिल करेंगे जब भीड़ बढ़ेगी. तो यहाँ पे भी 4 मंजिल होनी चाहिए, लेकिन क्या था कि सरकार ने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं. आप समझिए, गुड़गांव के अंदर पैसा खर्चने के टाइम पे सीवेज का देखो प्रॉब्लम्स कितनी है. आज अगर जो DLF 6 एरिया बन रहा है वहाँ पे सीवेज पहले डल रहा है, यहाँ पे सीवेज का है नहीं. नालियां बनी हुई थी गोल्फ कोर्स रोड पे, वो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक नाली है. वो लाइन सेगमेंट है, वो लाइन नहीं है. लाइन सेगमेंट के अंदर पानी भरते रहोगे तो उसकी कैपेसिटी है कि एक टाइम तक पानी भर जाएगा और भर के बिल्कुल ओवरफ्लो करेगा. तो ये सरकार की कमियां कुछ ना कुछ जो है, वो उसको ये समझने के लिए कि और ओवरफ्लो मतलब बर्डन पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा सड़कों पे, पार्किंग में. देखिए, दिल्ली और गुड़गांव में फर्क क्या रहेगा अगर हम ये चीजें करेंगे. तो मेरे हिसाब से ये सरकार को एक पर्टिकुलर गाइडलाइन कर दे कि मैं 2025 तक या 2030 तक 31 तक मैं फ्लोर अलाउ नहीं करूंगा. मैं पहले इंफ्रा पे काम करूंगा, फिर उसके बाद वर्किंग करूंगा. तो हम ओके हैं उसके लिए, हम उस मार्केट को वैसे चलाएंगे 5 साल. If you get an opportunity to be a representative of real estate association to present your viewpoints to the government of Gurgaon of how to handle this situation to improve the infrastructure better so that ये policies आना ठीक हो जाए. What is your 3 biggest advice to the government? देखिए, ये तो बड़ा आपने बहुत ही बड़ा बोझ डाल दिया मेरे कंधों पे. तो इसमें क्या है जी, सबसे पहले तो मैं चीजों को ना मतलब हम ना जैसे गुड़गांव जब बना था तो हमारे को 21 का प्लान मिलता था. 2011 के बाद हमारे बाकी सेक्टर कटे हैं. 58 से लेके 115 बाद में कटे हैं 11 के बाद. 11 से पहले सिर्फ 1 से 57 था. तो मतलब पहले जो प्लानिंग थी ना, 31 की प्लानिंग, 25 की प्लानिंग, वो 10 साल की पूरी प्लानिंग थी. तो पहले तो मुझे वो एक रोड मैप बनाना है कि क्योंकि गुड़गांव बहुत सक्सेसफुल हो गया है और मेरे को ये रोड मैप बना के देना है कि गुड़गांव के अंदर मुझे अगले 10 साल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुझे देनी ही देनी है. तो उससे क्या होगा कि लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये एरिया में ये काम हो रहा है, ये एरिया में ये काम हो रहा है. तो एक प्राइस रेगुलराइजेशन हो जाएगा. दूसरा, हमारे पास एक कस्टमर का भी माइंडसेट क्लियर हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन रोड पे अभी एलिवेटेड रोड बन, हम 2016 से बेच रहे हैं प्रोडक्ट को. 4 साल के 4 से 5 साल में बन जाएगा, 4 से 5 साल में बन जाएगा. छप्पे से बैठे अभी तक शुरू नहीं हुआ. DLF की साइड से शुरू हो गया, यहाँ पे नहीं शुरू हुआ. सो 10 साल का एक पूरा रोड मैप मिलेगी. ये डेडलाइंस के बेसिस पे हम काम करेंगे. दूसरी चीज जो मेरे को समझ आती है कि देखिए, गुड़गांव के अंदर आज की डेट में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का बहुत कस्टमर एक कुछ एक पॉकेट्स ऐसी है जहाँ पे अभी भी जमीन बहुत सस्ती है, सस्ती क्या पर मिल जाती है इस प्राइस रेंज के अंदर. तो मेरे ख्याल से लाइसेंसेस एंड पॉलिसीज इन मे बी इनको टियर 2 ना करके इनको गुड़गांव एक्सटेंशन कर दिया जाए. जैसे नोएडा एक्सटेंशन है, वैसे गुड़गांव में एक्सटेंशन करके इसके अंदर एक अलग से पॉलिसी बननी चाहिए. आप 5 पॉकेट्स पकड़ लीजिए आसपास गुड़गांव के, क्योंकि गुड़गांव को एक्सपेंशन करने की जगह बहुत है. इधर से उधर की तरफ पलवल की तरफ चले जाओगे, इधर से आप राजस्थान की तरफ चले जाओगे, उधर से आप झज्जर के आगे निकल जाओगे, रोहतक तक निकल जाओगे. सो वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेंशन. सो बेसिकली रोहतक भी आ सकता है कभी ना कभी. यहाँ पे मानेसर तो आ ही चुका है आगे, तो अलवर और वहां पे भी हम बातें कर रहे हैं. तो जो भी अपनी पॉलिसीज है 10 साल की 20 साल की, चाहे अलवर को लेके आना हो गुड़गांव के अंदर, या रोहतक को गुड़गांव का पार्ट करना हो, या सोना से आगे पलवल को इधर लेके आना हो, ये पॉकेट्स को अगर हमें आगे तक डेवलप करना है तो उसका एक रोड मैप क्लियर चाहिए अपने को कि भैया ये होगा. उससे क्या होगा, कस्टमर को एक क्लैरिटी मिलेगी भैया अगले 10 साल में 15 साल में, और ये टाइमलाइंस पे हो. और तीसरी चीज ये जो ऊपर की पहले 2 पॉइंट्स बोले हैं, उनकी जो टाइमलाइंस है वो टाइमलाइंस को एडेयर करके कुछ भी करके पैसे सैंक्शन करके प्राइवेट लोगों को जो कि कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी है पैसे खर्च के कंप्लीट करने की, चाहे वो DLF हो, चाहे वो और बहुत बड़े बड़े मे बी आई नो लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, लॉट ऑफ पीपल जो अपने जिनका इंटरेस्ट भी है उस एरिया को डेवलप करने में, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए. So yeah, that is the 3 things which I feel is making sense for me.
हाउ सर्च माई प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रोकर्स, और जो हमारा ये पॉडकास्ट अभी सुन रहे हैं, टेल देम दैट सर्च माई प्रॉपर्टी उनकी कैसे हेल्प कर सकता है फॉर देयर नेक्स्ट ड्रीम होम। देखिए, सर्च माय प्रॉपर्टी में पहले तो ये आपको ये समझना है, वी आर योर एडवोकेट, वी आर नॉट बिल्डर्स एडवोकेट, लेट्स बी वेरी क्लियर। we will we are trying to we are basically bridging the gap between the the sales and the sales person जो बिल्डर का है। तो आपकी और उसके बीच में एक तो पहले आपकी रिक्वायरमेंट समझनी बहुत जरूरी है। मैं पहले ये डिस्कस करा, पूरे गुड़गांव के अंदर ना इस समय कम से कम, जैसे मैंने डिस्कस करा, 1600 अपार्टमेंट की डिस्कशन है। और 1600 अपार्टमेंट तो आपको नहीं पता, और ना ही मैं बेच सकता हूँ, ना मैं बचा सकता हूँ आपको। तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर चीजें, और आपको हम लेके जाते हैं। देखिए, अच्छा क्या है, ज्यादातर डेवलपर्स, ज्यादातर ब्रोकर्स में ये माइंडसेट है, या वो फ्रेश करते हैं, या वो रीसेल करते हैं, या वो बिल्डर का काम करते हैं, या वो बिल्डर फ्लोर नहीं करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे 6-7 डिपार्टमेंट्स हैं। बिल्डर फ्लोर का अलग डिपार्टमेंट है, हमारा रीसेल का अलग डिपार्टमेंट है, रेंटल का अलग डिपार्टमेंट है, हमारे पास हाई राइज का अलग अपार्टमेंट है, फिर इसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन जो अफोर्डेबल सेगमेंट की चीजें, उसका अलग डिपार्टमेंट है। So we have different people, different experts for different segment, but all of them have knowledge of everything. तो हम कोशिश ये करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट को पहले तो हम समझे। तो आपको पहले मेरे पास 1 घंटा आके समझना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो आपको मुझे अपनी बीमारी बतानी पड़ेगी, बीमारी में कहाँ दर्द है, खून मतलब चढ़ाना है या क्या करना है, मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। तो ये सारी चीजें करके आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपकी सारी चीजों को समझ के एक एनालाइज रिपोर्ट दिखा दूंगा, एंड आई विल कनेक्ट यू द राइट पर्सन इन माय टीम हु कैन हेल्प यू। आपको बिल्डर फ्लोर चाहिए और मैं हाई राइज दिखाता जा रहा हूँ, आपके पेरेंट्स को घबराहट है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से जाने में, और मैं आपको 70th फ्लोर बेच रहा हूँ। तो ये चीजें ना मिसमैच है। तो जो बाकी ब्रोकर है, ये हमारी वन स्टॉप शॉप है। अच्छा, दूसरी चीज, हमारा लोन का अलग डिपार्टमेंट है जो हमारे सर्च माय प्रॉपर्टी में इनकॉर्पोरेटेड है। हमारे पास इंटीरियर का अलग डिपार्टमेंट है जो हमारे सर्च माय प्रॉपर्टी में इनकॉर्पोरेटेड है। कमाल की बात यह है कि जो हम आपको बेच रहे हैं सामान, अगर आपने कभी रीसेल करना है, उसके लिए भी हमारे पास बंदा है। अब आपका मकान अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, आपने रेंटल करना है, उसके लिए भी हमारे पास बंदा है। कमर्शियल कुछ लिया आपने, कमर्शियल को लीज करना है, उसका ऑफिस स्पेस की इंटीरियर कराना है, ऑफिस को चलाना है, उसके लिए भी हमारे पास बंदा है। तो ये हमारे पास इन हाउस है, हमारे पास कोई कट वाला सिस्टम नहीं, हमारे पास ऑन सैलरी है, और हमारे एक अलग बिजनेस मॉडल। ऑब्वियसली आई एम मेकिंग मनी ऑन एवरीथिंग, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट मेकिंग मनी, आई एम मेकिंग मनी, बट आई एम ट्राइंग टू बी गिविंग यू अ फैसिलिटी। अगर आपको मेरी सर्विसेज पहले दिन ही पसंद आएगी, तो आई एम श्योर मेरे को आखिर तक आपकी सर्विसेज पसंद आएगी, और उससे मुझे रेफरेंस मिलेगा। सौरभ जी, ब्रोकर का आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ब्रोकर का चैलेंज ब्रोकर है सर, ब्रोकर का चैलेंज सिर्फ ब्रोकर है और कुछ नहीं। आप प्लीज समझिए, हम लोग ना वी आर नॉट, वी माइट बी इन टॉप। देखिए, 1 लाख ब्रोकर है, ठीक है, जो ब्रोकर नहीं है वो भी ब्रोकर है, ठीक है। 1 लाख ब्रोकर में से आप ये मान के चलिए 1000 ब्रोकरों के पास ऑफिस होगी, 1000 में से शायद 500 के पास एक टीम होगी, और 500 में से जो टॉप 100 है, शायद उनके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ टीम होगी, ठीक है जी। अब आपको ये समझना है, जितनी ये जनता घूम रही है, मैं कह रहा हूँ 1000 को हटा दो, पर 99,000 ब्रोकर घूम रहे हैं पूरे गुड़गांव भर में। अब वो क्या करते हैं, दे आर ऑन द बाइक्स, देयर आर बिल्डर जो उनको पना देते हैं अपनी गैलरीज में, उनको खाना पीना खिलाते हैं, सारे दिन बैठाते हैं, तो उनको लीड्स भी वहीं से प्रोवाइड करते हैं। उनकी डेस्परेशन और उनकी रिक्वायरमेंट शायद 25 लाख रुपए, शायद 2 लाख रुपए की है। गलती से 5 लाख मिल जाता है, सबसे पहले जाके बाइक चेंज करते हैं और फोन खरीदते हैं, ठीक है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं, किसी और को नहीं पालना, अपनी टीम को नहीं पालना, अपने बच्चों को नहीं पालना, घर को नहीं चलाना, ऑफिस नहीं चलाना, बड़े बड़े सेटअप्स। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ, एक की बुकिंग काट के आपके साथ भी होता है, वो पहले मेरी कोई बुकिंग काटेगा तो उसकी नहीं कटेगी क्या? ब्रोकरेज पे डिस्काउंट दोगे? आज की डेट में कस्टमर आता है उड़ता हुआ कि जी 3% आ रहा है, और 3 का मुझे मेरे को 2.5 मिल रहा है, तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, हाँ जी मैं 2.75 में कर लूं। भाई कैसे कर लूंगा? आपके पास जीएसटी है, आपके पास टीडीएस है, आपके पास टैक्सेशन है, 30% टैक्स है माइंड पे। तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि ये चीजें करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये जब बुरी मार्केट होती है तो ये मर जाते, फिर नौकरी करते हैं बच्चे, 50,000 लाख रुपए की नौकरी करने के, एक डील में लेके आऊंगा, इसे चोरी करके उधर ले जाएंगे। तो ये सब चीजों की प्रॉब्लम हमारे इंटरनल ब्रोकर नेटवर्क की है, जो शायद हमारे को थोड़ा सा हमारे को खुद ही समझना पड़ेगा। Your understanding about the market and the broker mindset, which is very important. Taking this from here, now want to ask, आपने तैराकी के बारे में सबसे पहले कहाँ से जाना? तैराकी आपकी क्या हेल्प करता है? और हमारे भाई बंधु
ब्रोकर्स जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उनको त्यागी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मेरा एक फ्रेंड है शिवम अरोड़ा, मोहिनी उनसे मिली थी, उन्होंने इन्वेस्टर गाइड करके कंपनी है, उन्होंने त्यागी दिया था पहली बारी, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि यार आई थिंक यू शुड बाय दिस एंड इट इज अ गुड प्रोडक्ट एंड मोहिनी को उन्होंने नहीं, मनबीर ने, शिवम एंड मनबीर ने उन्हें रेकमेंड करा और उसने राजा ना कहते हैं मुझे, उसने हमारे को, मोहिनी आई फिर मेरे पास, मोहिनी को मैंने कहा कि यार हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्रीज है, देखो 850 इन्वेंट्रीज है, कहते लेकिन ये एक्सेल पे है, सो आई थिंक कन्विंसिंग of Mohini was actually, that clicked. But definitely the reference was one of my friend, Investor Guide से, जिन्होंने मुझे ये रेफर करा and I'm thankful to Mohini and Shivam and Manbir कि finally हम लोगों ने वो त्रियागी ले लिया और उसके बाद हमारी जिंदगी में यह साल आया, मैं बताता हूँ क्या फर्क भी क्या है, ये भी बताता हूँ त्रियागी से क्या एडवांटेज मिल जाएगा या हमें क्या मिल गया। त्रियागी से एडवांटेज ये मिला जी, पहले मेरे पास एक लड़का जो मार्केट में जाता था, बिल्डर फ्लोर देखता था, गली गली घूमता था, बिल्डरों से बात करता था, तो उसने मोनोपोली कर दी और मुझे शुरू से लेकर रात तक हमेशा रात को नींद इसलिए नहीं आती थी कि गलती से मुझे छोड़ के कहीं और चला गया तो मेरा क्या हो। तो त्रियागी ने आज मेरे को इतना कंफर्ट दिया है, आप मानेंगे नहीं, मैंने त्रियागी के अपने ऑफिस के अंदर हमने एक्सेस दे दिया, ओपन एक्सेस, जिसको बिल्डर फ्लोर करना करो, जिसके बस की है, जिसको समझ आ रहा है, जो करना चाहता है, जिसकी कैपेसिटी में है, वो जाके करे। आपको इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री मैंने ओपन कर दी, तो त्रियागी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। मैं तो चाह रहा हूँ कि आगे जाके वो रीसेल में भी कर ले, हाई राइज में भी कर ले, तो हमारी एक और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वर्टिकल है जो टच्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत जरूरत है। आपके त्रियागी मतलब हैज बीन अ वेरी बिग सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बिल्डअप फॉर अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Where do you see Gurgaon 2030? 2030 में तो देखिए गुड़गांव में, पहले आपको समझना पड़ेगा गुड़गांव के अंदर मार्केट जो है ना बहुत 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 चेंज हो रही है, ब्रांडेड रेजिडेंसीज नहीं था आज तक। I was about to ask you कि we are going towards Hong Kong and Dubai side where lot of collaborations now happening with Elisa, Jacob & Co. What is the future with this? देखिए मार्केट के अंदर ना आपको समझना पड़ेगा, सारी मार्केट के अंदर इस समय रियल एस्टेट मार्केट के अंदर थोड़ा पीछे से समझ लेते हैं। लगून अपार्टमेंट, मैं वहां रहता हूँ लगून अपार्टमेंट में, लगून अपार्टमेंट में एम्बियंस वाले एक क्लब होता था, क्लब के नाम पे एक हॉल था, एक जिम था, एक स्विमिंग पूल था, ठीक है। फिर आगे सोसाइटीज में कम्युनिटी हॉल बनना शुरू हुआ, CGHS वगैरह में। फिर क्लब के नाम पे सिर्फ एक जिम होना चाहिए, एक केमिस्ट की दुकान होनी चाहिए, एक नाई की दुकान होनी चाहिए, किराने की दुकान होनी चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए और मे बी एक लॉन टेनिस या बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए। तो ये हद मार्केट चीजें थी। अब धीरे धीरे देखो डेवलपमेंट कैसे चेंज हुई है। DLF ने इंट्रोड्यूस करा, MR ने इंट्रोड्यूस करा कि रेस्टोरेंट भी होना चाहिए, कैफेज भी होने चाहिए, हाई एंड और फैसिलिटीज होनी चाहिए। आपको क्या चाहिए वो सोसाइटी के अंदर होना चाहिए। कॉल्फ एस्टेट में आप देखिए एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। तो क्या हुआ, ये एमिनिटीज तो चलो हमारे टाइम पे वो लग्जरीज थी, आज के बच्चों की वो नेसेसिटी है। हर एक कमरे में AC तो है, हर घर में टीवी तो है, लाइट नहीं जाती तो नहीं जाती, पावर बैकअप है तो है। हमारे को पता है कि हम कैसे कैसे चलते आए जर्नी में, हमारा जो ये एरा है। तो अब क्या हुआ है कि अब क्योंकि एक्सपोजर भारत देश का, भारत इंडिया इज ग्रोइंग, और भारत देश का एक्सपोजर कैसे बढ़ रहा है कि आप ट्रैवल बहुत कर रहे हैं। जैसे हम साल में 4 बार ट्रैवल करते हैं, सर्दी की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां, दिवाली की छुट्टियां और एक एग्जाम्स के बाद। तो यही पर्टिकुलर स्टेटस ज्यादातर लोग गुड़गांव फॉलो करते हैं। तो जब दिल्ली और इंडिया से बाहर जाते हैं लोग, तो वहां पे उन्होंने देखी, हांगकांग भी देखा, दुबई हर कोई गया हुआ है, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया हर कोई गया हुआ है, तो ये लंदन वगैरह भी काफी लोग गए हुए हैं, US भी काफी लोग गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए हुए हैं। तो वहां जाके समझ आया कि नई नई चीजें अब ब्रांड्स पे जा रहे हैं। तो अब मैं लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद सकता, पर लैम्बोर्गिनी का मकान तो खरीद सकता हूँ। मैं जेकब एंड को की घड़ी नहीं खरीद सकता, पर मकान तो खरीद सकता हूँ। सो देयर इज एन एडिशनल वैल्यू ऐड, और प्राइस का भी डिफरेंस हमेशा रहेगा। प्लीज समझिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट पकड़ लो जिसका आप ट्रम्प पकड़ लो और आसपास के सारे अच्छे लग्जरी प्रोडक्ट पकड़ लो, ठीक है ना, आर्बर पकड़ लो बेशक, आपको ये देखना पड़ेगा ट्रम्प और आर्बर में प्राइस का डिफरेंस है। सो आर्बर जबकि अच्छा प्रोडक्ट है, ट्रम्प भी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन प्राइस का डिफरेंस इसलिए रहेगा, ब्रांडेड रेजिडेंसी हमेशा आपको प्लस देती है। तो यस, all these brands like Lamborghini, Jacob & Co, Elisa,
क्योंकि ना एक सेगमेंट आता है, जिस सेगमेंट के बाद वो पिरामिड हमने पढ़ा था ना पहले, मार्केटिंग में पिरामिड पढ़ा था। पहले मैं अपने घर की रोटी का जुगाड़ करूँ, फिर मैं दूसरे की रोटी का जुगाड़ करूँ, फिर मैं अपनी गाड़ी का जुगाड़ करूँ, फिर मैं मकान का जुगाड़ करूँ, मकान को और बड़ा करूँ, मकान को और बड़ा करने के बाद अब मुझे उस लेवल पे पहुंच गया हूँ कि मेरे पास घड़ी तो है, और मेरे पास जेको की घड़ी चाहिए, मुझे एपी की घड़ी चाहिए, मुझे ये सब चाहिए। तो ये तरीके में सेम मकान तो मेरे पास है, पर अब मुझे मकान भी ब्रांडेड चाहिए कि मैं लोगों को बताऊं तो एड्रेस हो, जैसे सीपी में मेरा ऑफिस हो तो एड्रेस है, कॉन्फ्रेंस रोड में मेरा ऑफिस है, एड्रेस है। सेम एक ब्रांडेड रेजिडेंसी में अपने को एक एड्रेस की एक फील गुड फैक्टर है मेरा खुद का पर्सन, कि मैंने अगर अच्छे ब्रांड पहने, अच्छे वो पहनी है तो सेम। सो यही एक मेरे को समझ आती है बात, और दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। Thank you, Saurabh ji, for coming on the podcast and give us so valuable feedback and insights about the market. जी। Hope हम फिर दोबारा कभी मिलेंगे for an interesting round table session.